Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana. I'm BBA student and your microbiology and anatomy mentor, Medico Paji. And who are new to this video, I want to tell in this video I will clear your concepts as well as tell you how to present in exams. So बेटा Staphylococcus aureus is one of the most important question और इसके बगैर तो पेपर बन ही नहीं सकता. आना ही आना क्वेश्चन है, सच्ची बात है. यू कैन आस्क योर सीनियर्स, यू कैन गो योर 10 ईयर PYQs, कुछ भी देख लो, क्वेश्चन इसका यूनिवर्सिटी में भी आना ही आना है, MCQ भी आना ही आना है, नीट PG में भी क्वेश्चन आना ही आना है, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया. So Staphylococcus aureus, in this video I will cover the virulence factor, Staphylococcus scalded skin syndrome and TSSS, that is my toxic shock syndrome. And in part 2 I will cover the clinical features, lab diagnosis and treatment of the aureus. So MCQ, PYQ and clinical case I will discuss in part 2. And thought there is no shame in making mistakes while trying to figure things out. The goal is to live a fulfilling life, not a perfect one. So बेटा Staphylococcus aureus वायरलेंस फैक्टर जैसे स्ट्रेप्टोकोकस के वायरलेंस फैक्टर थे वैसे ही स्टेफाइलोकोकस के हैं. दैट इज अंडर द कैटेगरीज ऑफ द सेल वॉल फैक्टर्स, एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स. बट ये नहीं कि जैसे स्ट्रेप्टोकोकस के थे सेम एज इट इज, कि जैसे उसके एंजाइम थे, जैसे उसके टॉक्सिन थे, जैसे उसके सेल वॉल फैक्टर से वैसे स्टैफ के हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. हाँ, उनकी कैटेगरी सेम है, वायरलेंस फैक्टर की कैटेगरीज इज सेम. तो सेल वॉल फैक्टर्स तो कोई भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, तो मैंने आपको जनरल माइक्रोबायोलॉजी में भी इसकी टेक्निक बताई हुई है, ट्रिक बताई हुई है कि यू कैन राइट इट पेप्टिडोग्लाइकन लेयर. सो प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल वॉल एंड इंड्यूसेस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. टिकोइक एसिड हेल्प्स इन एडहेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट. क्लंपिंग फैक्टर इज नोन एज बाउंड कोएगुलेस फिब्रिनोजन. सो बेसिकली इट इज अ बाउंड कोएगुलेस फिब्रिनोजन बाइंडिंग एडहेसिन. ठीक है, क्या नाम है क्लंपिंग फैक्टर का? दैट इज माय बाउंड कोएगुलेस फिब्रिनोजन बाइंडिंग एडहेसिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लाइड कोएगुलेस रिएक्शन. सो बेसिकली इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लाइड कोएगुलेस रिएक्शन दैट आई विल डिस्कस इन लैब डायग्नोसिस. सो बेसिकली ये कोएगुलेस एंजाइम और फिब्रिनोजन के साथ चिपक जाता है क्लंपिंग फैक्टर. ठीक है, प्रोटीन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कोडेड बाय द स्पा जीन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पा जीन. It is an anti-complementary gene that it inhibits the complement system of the host, inhibition of the opsonization and platelet damage. So it causes platelet damage, anti-complementary है and inhibits the opsonization, increasing the survival and virulence of the Staph aureus. Microcapsule. So sometimes the strain of the Staph aureus has microcapsule, inhibits the phagocytosis by the neutrophils. So not normal capsule is having a small capsule and it inhibits the phagocytosis of the neutrophil by the neutrophils. Enzyme very 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 important. coagulase enzyme तो भूलना ही नहीं है आपने. तो बेटा फर्स्ट एंजाइम इज coagulase, which is a very important virulence factor, which is a principal virulence factor of the Staph aureus. Principal virulence factor of Streptococcus pyogenes का था, Streptococcus pyogenes का क्या था? That was my M protein. Staph aureus का क्या है? coagulase. सो बेटा coagulase एंजाइम कॉन्टैक्ट विद होस्ट ब्लड. स्टैफ ऑरियस आपके अंदर आया, आपके ब्लड में गया, it will activate the prothrombin. And this prothrombin activated will convert the fibrinogen to fibrin, and this fibrin will lead to the blood clotting. So जो staph aureus आपके अंदर आता है, it causes the clot formation by activating the prothrombin. So fibrin clots surrounding the bacteria protect it from phagocytosis. Suppose this is a bacteria, उसके आसपास ऐसे प्लेटलेट्स ने क्लॉट बना लिया, तो ये जो क्लॉट बनाया है, this clot will protect the bacteria against the phagocytosis by the neutrophils and macrophages. Okay, very very important. This property is used in the tube coagulase test. स्लाइड कोएगुलेशन टेस्ट में कौन सी कर रहे थे हम? क्लंपिंग फैक्टर. whereas ट्यूब कोएगुलेस टेस्ट में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? दैट इज माय क्लॉटिंग. कोएगुलेस की वजह से हुई क्लॉटिंग, दिस प्रिंसिपल वी आर यूजिंग इन द ट्यूब कोएगुलेस टेस्ट. So next exam is my hyaluronidase. So this breaks the connective tissue network of the host. Next is my heat stable
thermonucleases and DNases is specific for the Staph aureus and not found in other species of Staphylococcus. Lipases and phospholipases are also found in the Staph aureus. Next are my toxins. So this is important section of today's video, toxins. So first is my hemolysin. So कितने hemolysin जो RBC को break करेंगे? अल्फा hemolysin, बीटा hemolysin, गामा hemolysin and delta hemolysin lead to the RBC hemolysis. Next is my leukocidins. So leukocidins का दूसरा नाम क्या है? Penton velatine PV toxin. So this toxin gets its name from their discoverers. Penton velatine PV toxin. So it is, अब क्या होता है? This is very very important. जब गामा hemolysin, this is a hemolysin, PV toxin that is my leukocidin, इन दोनों इकट्ठे काम करते हैं, तो इनको जब ये दोनों टॉक्सिन इकट्ठे काम करते हैं तो दिस इज नोन एज सिनर्जो. सिनर्जो मतलब टुगेदर. हाइमेनो मतलब WBC मेम्ब्रेन. हाइमेन का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन. ट्रॉफिक मतलब प्यार, मतलब ये उसके साथ जाके चिपक जाएंगे. इसके साथ जब गामा टॉक्सिन एंड पीवी टॉक्सिन दोनों मिलेंगे सिनर्जो. हाइमिनो मतलब मेम्ब्रेन के साथ चिपकेंगे और आगे रिएक्शन करेंगे. सो दे डू नॉट एक्टिव इंडिविजुअली. अकेला गामा कुछ नहीं कर सकता, अकेला पीवी टॉक्सिन कुछ नहीं कर सकता, बट इन कॉम्बिनेशन दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हीमोलिसिस. बट इन कॉम्बिनेशन they are producing hemolytic and leukocidal activity that is producing leukocyte and macrophages damage. Next is very very important, exfoliative toxin. एक्सफोलिएटिव मतलब खींचने वाला, दैट इज एपिडर्मोलिटिक टॉक्सिन. दूसरा नाम क्या है? एपिडर्मोलिटिक टॉक्सिन. It is having two parts, ETA and ETB. ETA is chromosomal and heat stable, and ETB is plasmid coded. The staph is also having plasmid. So B is plasmid coded and heat labile. So exfoliative toxin is responsible for Staphylococcus scalded skin syndrome. Staphylococcus मतलब caused by staph. Scalded skin मतलब skin उतरनी, slog off उतरनी शुरू हो जाती है, उतरनी शुरू हो जाती है. Oftenly affects the newborn infants and children as compared to adults. So clinical features क्या है? Fever, lethargy, irritability with poor feeding. The infant is refusing to the feeds. Okay, tender blisters, छोटे blisters start forming. बुल्ला बनना शुरू हो जाए. बुल्ला is fluid accumulation more than size more than 1 centimeter. निकोल्स्की साइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. निकोल्स्की साइन कैसे हम परफॉर्म करते हैं बेटा? कि आप ये सपोज करो बच्चे का हैंड है, ठीक है, आपने फोर्स कैसे लगानी है? टेंजेंशियल फोर्स लगानी है. कैसी फोर्स लगानी है? ऐसे खिसकती हुई स्लाइडिंग फोर्स लगानी है, टेंजेंशियल फोर्स लगानी है विद योर हैंड, बाय अप्लाइंग विद योर हैंड. तो जब आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे ना तो ऐसे स्किन उतरनी शुरू हो जाएगी. एपिडर्मिस विल बी रिमूविंग. देख रहे हो ये बच्चे की जो स्किन है वो उतरनी शुरू हो गई है. वो क्या हो गई है? उतरनी शुरू हो गई है. So this is my Nikolsky sign positive, that is separation of outer epidermal layer leaving the underlying skin. So mucous membrane are basically spared. अगर मैं बोलूँ आप बक्कल म्यूकोजा हो रहा है, इन्वॉल्व नहीं होएगा, ठीक है जी, या मैं बोलूँ क्या कहते हैं कोई भी म्यूकोजा आप मान लो, माउथ म्यूकोजा, एनल म्यूकोजा, कोई इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ स्किन इज इन्वॉल्व. Scalded skin syndrome caused by exfoliated toxin और epidermolytic toxin. नेक्स्ट इज एंटेरोटॉक्सिन. सो बेटा एक्सफोलिएटिव, एक तो हीमोलाइसिन तो और ल्यूकोसाइडिन से तो ब्लड के रिलेटेड हो गए, हाँ या ना. एक्सफोलिएटिव मेरा हो गया स्किन, स्कैंडल वैसे तो सारे स्किन से है, स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम से हो गया. एंटेरोटॉक्सिन इज रिलेटेड टू द फूड पॉइजनिंग. सो बेटा इट इज प्रोड्यूस्ड इन द 50% स्ट्रेन्स causes staphylococcal food poisoning. So staphylococcal food poisoning, प्री-फॉर्म्ड टॉक्सिन दैट इज सिक्रीटेड इन द फूड बिफोर इट्स कंजम्पशन. फूड में ही सिक्रीट हो जाता है, ब्लड में नहीं सिक्रीट हो रहा या जीआई में नहीं सिक्रीट हो रहा, डाइजेस्टिव सिस्टम में सिक्रीट नहीं हो रहा खाने के बाद, नहीं, फूड में ही सिक्रीट हो जाता है बिफोर इट्स कंजम्पशन. सो इट कैन रैपिडली एक्ट. फूड में ही गया हुआ है, फूड में ही है, तो जल्दी जब अंदर जाएगा तो जल्दी से जल्दी एक्ट करेगा. सो इंक्यूबेशन पीरियड इज ओनली 1 to 6 hours.
इंक्यूबेशन पीरियड इज ओनली 1 to 6 आवर। सपोज करो इसका बड़ा एक क्लिनिकल केस भी आता है कई बार कि एक बच्चा है, मान लो 6 इयर्स का है, या मान लो, या फिर चलो 10 इयर्स का है, ठीक है, 10 इयर्स का बच्चा है, एज नहीं मैटर करती, किसी को भी हो सकता है। 10 इयर्स का बच्चा है एक, ठीक है, वो बर्थडे पार्टी से जाके आया, किसी की बर्थडे पार्टी जाके आया, किसी अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में उसने फूड खाया। जब उसके पेरेंट्स उसको घर पे लेके आए तो 2 घंटे के अंदर अंदर ही उसको क्या हो गया, डायरिया हो गया, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, वॉमिटिंग हो गई। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इट कैन कॉज। सो इस तरह 2 ऑर्गेनिज्म इट कैन कॉज, फर्स्ट इज माय स्टैफ, सेकंड इज माय बैसिलस सीरियस। तो ये 2 ऑर्गेनिज्म ही हैं जो 1 to 6 आवर्स के अंदर अंदर फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। तो इस केसेस में आपको टाइम पीरियड चेक करना पड़ेगा कि कब उसको फूड खाने के कितनी देर बाद उसको फूड पॉइजनिंग हुई है। सो चलो नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। बहुत बारी क्वेश्चन आता है इसका, और कई बारी स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम का भी क्वेश्चन आता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो बेटा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। टॉक्सिन का नाम ही टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है। बोथ आर सुपर एंटीजन। तो बेटा सुपर एंटीजन मैंने आपको इम्यूनिटी में एक्सप्लेन किया है कि ऐसा एंटीजन जिसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की जरूरत ही नहीं है, ये सीधा ही जाके टी सेल को एक्टिवेट कर देता है। सो इट टेक्स लेस टाइम टू एक्ट। सो जल्दी से जल्दी आपको इसका इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको टाइम कम लग रहा है, क्योंकि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास जा ही नहीं रहा है, सीधा ही टी सेल के पास जा रहा है और अपना काम करवा रहा है। सो TSST दैट इज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 2 तरह का होता है, दैट इज 1 and 2। 1 मेन है, 2 आप भूल भी सकते हो, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट। 1 इज मेन। सो इट कॉजेज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन यूजिंग हाईली एब्जॉर्बेंट वजाइनल टेम्पून्स। तो ड्यूरिंग मेंसेस द फीमेल्स यूज आइदर पैड्स और टेम्पून्स। सो बेटा जो फीमेल्स टेम्पून्स ज्यादा देर तक यूज करती हैं, वैसे बोला जाता है कि आपने टेम्पून्स जो होते हैं दैट इज नॉट यूज्ड मोर देन 24 आवर्स। बट कोई लेडीज अगर जिसने टेम्पून अपने वजाइना में डाला ड्यूरिंग मेंसेस और वो टेम्पून निकालना भूल गई, ठीक है, it can lead to a toxic shock syndrome, very serious complication. So absorbent vaginal tampons during menses जो women use करती हैं, they क्या कहते हैं, forget to remove that tampon, it can lead to the very serious toxic shock syndrome caused by the Staphylococcus aureus. Next, और कब कब हो सकता है toxic shock syndrome? Due to the complication of the staph abscess or osteomyelitis. So osteomyelitis and abscess both are caused by the staph. पोस्ट सर्जिकल ट्रोमैटिक और बर्न वुंड इंफेक्शंस के बाद भी हो सकता है कि पेशेंट को इंजरी हुई, उसके एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्राइफ एक्सीडेंट, स्टैफ ऑरियस ने इन्फेक्ट किया, पता नहीं लगा और बाद में जाके वो शॉक में जाना शुरू हो गया, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो इसका नाम ही ऐसे पड़ा है। टॉक्सिक मतलब टॉक्सिन की वजह से हो रहा है, शॉक मतलब शॉक लाइक फीचर्स हैं, शॉक में चला जाएगा पेशेंट, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं। सो बेटा पैथोजेनेसिस क्या है? TST1 एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द टेम्पून्स टू द सर्कुलेशन। मोस्ट कॉमन इज ड्यू टू टेम्पून्स ओनली, कि टेम्पून से जो मेरा स्टैफ है उसने टॉक्सिन रिलीज किया, वो ब्लड में चला गया, TSST1 टॉक्सिन। TSST1 is a super antigen, directly stimulates the T cells, and excessive production of the cytokines will lead to the cytokine storm, lead to the fatal multi-system disease, that is my shock. देख रहे हो ब्लड में जाके इट कॉजेज मल्टी ऑर्गन फेलियर ड्यू टू द एक्सेसिव साइटोकाइन रिलीज। क्लिनिकल फीचर्स: फीवर, हाइपोटेंशन, वॉमिटिंग, डायरिया, कंफ्यूजन, myalgia, abdominal pain, all non-specific symptoms and all are the symptoms of the shock. Rapid involvement of organs like liver, kidney, lungs, GIT, CNS, कि पेशेंट की कॉन्शियसनेस अल्टर हो रही है, क्या कहते हैं, किडनी से ओलिग्यूरिया हो रहा है, देयर कैन बी जॉन्डस ऑल्सो, ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया। डायग्नोसिस आपने कैसे बनाना है? सो डायग्नोसिस केस डेफिनेशन। अब पेशेंट आपके पास आया है, बेटा पेशेंट आपके पास आया, आपके पास उसका सैंपल लेते थोड़ी फिरोगे, पहले आप उसको ट्रीट करोगे। तो इसका जो डायग्नोसिस है दैट इज मेनली क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस है इसका। तो क्या क्या होना चाहिए? फीवर हो सकता है, रैश हो सकता है, रैश ड्यू टू स्टैफ ऑरियस, क्योंकि स्टैफ ऑरियस इज कॉजिंग माय स्किन मैनिफेस्टेशंस।
Desequestration, that is removal of the slowing of the skin. Hypotension, मल्टी ऑर्गन फेलियर इक्वल टू और मोर देन 3 ऑर्गन्स, दैट इज ब्रेन ज्यादातर इन्वॉल्व होता है, किडनी ज्यादातर इन्वॉल्व होती है, जीआई इन्वॉल्व होता है. नेगेटिव ब्लड कल्चर फॉर अदर पैथोजेंस, आपने ब्लड लिया, ब्लड को कल्चर 1-2 दिन बाद उसका रिजल्ट आया, स्टैफ पॉजिटिव था, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म वाज नेगेटिव, सो इट इज माय टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. सो एंटी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन एंटीबॉडीज अपीयर एंड आर प्रोटेक्टिव इन नेचर. हमारी बॉडी उस टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है. ठीक है, और कौन कौन से टेस्ट वी कैन यूज, दैट इज माय लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट टू डिटेक्ट द टॉक्सिन, पीसीआर एंड एलएफटी आरएफटी हम क्यों कर रहे हैं, टू चेक द मल्टी ऑर्गन, टू चेक द ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, टू चेक द ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट चेक करने के लिए. लो प्लेटलेट काउंट, डीआईसी होता है, डीआईसी की वजह से लो प्लेटलेट काउंट हो जाएगा, शॉक वाले फीचर आएंगे. ट्रीटमेंट क्या है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की, फर्स्ट इज फ्लूइड्स विच आर लाइफ सेविंग फ्लूइड्स, which are life saving drugs. Vasopressor, why we are using vasopressors, vasopressors हम क्यों यूज करने हैं, to reverse the hypotension, कि hypotension ठीक हो सके. It will stimulate the alpha receptor present on the blood vessels causing the normal BP. फ्लूइड्स क्यों यूज कर रहे हैं हम, फ्लूइड्स क्यों यूज सकते हैं, क्योंकि वेसोडाइलेशन हुई पड़ी है, बहुत सारी वेसोडाइलेशन हुई पड़ी है, वेसोडाइलेशन से ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है, फ्लूइड लॉस ज्यादा हो रहा है, तो वो फ्लूइड लॉस को ठीक करने के लिए वी आर गिविंग फ्लूइड्स. रिमूव फॉरेन बॉडी, दैट इज माय वजाइनल टेम्पून, वजाइनल टेम्पून रिमूव करो. क्लिंडामाइसिन एंड पेनिसिलिन वी कैन यूज, एंड फॉर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस वी विल यूज वैंकोमाइसिन. ये सारी ट्रीटमेंट मरसा वर्सा आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट वीडियो. वैसे मैंने जनरल में भी आपको करवा दी थी, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा करवाऊंगा. So this was all about today's video. कोई भी डाउट हो you can comment और DM on Instagram, link is in description. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में on the lab diagnosis, treatment, clinical features of the Staph aureus.